remembers it. We're not even धन्यवाद educated to know that it's copied. It's not. Hi, धन्यवाद थैंक यू सो मच Shivam. थैंक यू सो मच हाय श्रुति, बात हाय सुन रहा है श्रुति। शिवम, नमस्कार नमस्कार कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। अरे सब पर लोग हमें कह तो रहे हैं। पता ही नहीं है ना। अब ये बताओ कि हम तो इतने एजुकेटेड भी नहीं है कि हमें पता है कि ओरिजिनल है कि नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं, मैंने अब बाहर आके लिखना शुरू कर दिया है सर। पहला पहला प्यार सबको अच्छा लगता है, उल्फत के मौसम में बरसात में भीगना अच्छा लगता है। बेबी कभी कभी खुद भी कॉल कर लिया करो, हमें आपकी आवाज में अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। कैसा लगा श्रुति जी आपको? There's no point बहुत me बढ़िया। being over here because I don't understand these things. Oh yeah, what do you think he said? He said something about Pehla Pehla Pyar. I think he was talking about that Salman Khan movie, no? What was it? नहीं सर, ये भी सही, ये सेल्फ मेड है सर। It's fine. It's fine. It's okay. Look, I have this to say to everybody who says that his Sher o Shairi is not original. The fact of the matter is, I think he's stuck. Has he got stuck? The fact of the matter is, it's not about the Sher being original, in my opinion. I could be wrong. It's about knowing what to say at the right time for that moment to create that magic. Jay? Because आपका I क्या still ख्याल? because I still remember the fact, you know, when Ran sir used to be like, जब भी कोई situation होता था, Ran भाई used to be like कि शिवम भाई इसके ऊपर कुछ तो एक you know एक शायरी हो जाए, and that man used to, you know, I don't know वो time वो बोलना is like sir it's another level shit man, like because यहाँ पे एक आंसर हमें रटने के लिए इतना टाइम लगता है, और ये बंदा जब भी इसको बोलो कि नहीं आपको ये सिचुएशन के ऊपर एक शायरी बोलना है, and he used to be so much on point, you used to be like कि ये क्या हो गया? So that's more difficult. So copying or not copying is a different part altogether. But this guy is like next level, next level. I used to be a big fan of Shivam Shairi. मैं तो बोल ही रही हूँ शिवा मैम योर बिग फैन। Yeah, you. Thank you I'm so a much. big fan. कोशिश I'm a कर रहा big हूँ कि fan. उसको वापस ऐड कर दूं, उसका वीडियो अटका हुआ है। आपके लिए भी अटका हुआ है? नहीं मेरे लिए तो आ नहीं रहा अटका है, हुआ सही है. है। मेरे लिए तो एकदम से अटका I हुआ है। think your internet is bad this time. I think नहीं your सर, आप internet कैसे does लग not. रहे हैं? बढ़िया। For a I think change, your it's fine. internet cannot tolerate his शायरी। Oh yeah. अरे ऐसा मत, इतना भी नहीं है मैं। I'm just No, wondering. but now the dynamics of the game has changed, sir. Like if you see in the villa, all these girls were against Shivam, Nikita, Kat, but now coming outside, like you know, outside Splits villa, like they are like very good friends, best friends forever. Hold on, listen. We Don't are spoil it for all- the people who are watching the season. Okay, right now. कि बाहर निकल के ये हो गया, बाहर निकल के वो हो गया, फिर तो यार मजा ही निकल जाएगा ना. Like right now, I'm everybody's watching. imagining, Jay, that you and Aditi are going to get married next week. Like this is. वाह, क्या बात है? Jay I'm just saying, Aditi. when they watch you, Jay when they watch Aditi. your film, and you see the beautiful looks amongst the two of you and the smiles and everything, ऐसे लगता है कि यार और इनको- सर, नहीं लास्ट पंडित को बुला एपिसोड लेना में ना, मुझे लग रहा है last कहीं ना कहीं episode में she had to अदिति sit on जय भाई को छोड़ के Shivam. किसी और से, अदिति जय भाई के साथ नहीं करेंगे, किसी और के साथ जाएंगी, और फिर जय भाई शायरी बोलेंगे कि कहते हैं कि क्या कहता वो, तो क्या हुआ जो अदिति ने रचाली मेहंदी, निखिल सर, तो क्या हुआ जो अदिति ने रचाली मेहंदी, अजय भाई बोलते हैं तो क्या हुआ, तो जब अदिति ने रचाली मेहंदी, अब हम भी सहरा सजाएंगे, तो क्या हुआ अदिति तू मेरे नसीब में नहीं, अब हम तेरी छोटी बहन पटाएंगे। हाँ? What? I just got the Choti Behan reference. I don't think that's. छोटी बहन पटाएंगे. Shivam, एक minute. Once again, timer. Shivam, can you exit the stream because you're completely stuck on my screen? Can you exit the stream so I can add you back on? एक सेकंड सर, ओके ओके ओके। आप तो बिल्कुल अटके हुए हैं. You're not moving for even a millimeter. Okay, let me just try and add Shivam back on, and then at some point in time, I will have to. Shruti have to knock you off Yes. because You gotta add the boom bomb. yes, the Boom whole bam. gang has to be here. I'm a fan. I will listen to the old conversation. अब ठीक है सर? Okay, now it's working. Now it's working. So Yes, what sir. I was really impressed by
you know, when I came into Splitsvilla to drop Devashish and Sapna, जब उनकी एंट्री हुई थी वाइल्ड विला से, जब वो आए थे, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको तो पता भी नहीं था कि वाइल्ड विला नाम की कोई चीज थी, एंड उसके बाद जब मैं उनको छोड़ के भी गया था, you guys didn't know that Wild Villa continued beyond that, because we had told Devashish and Sapna that Wild Villa is finished, and everybody was leaving Splitsvilla is now going to Wild Villa. In fact, Riya came there and she was heartbroken, and her main reason for wanting to fight in Wild Villa was to come back to see Shivam in Splitsvilla. At that point in time, जब मैं आया था तो उन्होंने कहा कि the crew had told me कि keep your eye out for Shivam, बहुत शेरो शायरी मारता है. And as soon as I came in, one guy spoke up and I said, यही होगा वो, यही होगा. And obviously, because my English is not very strong. मैं बोल रहा हूँ कि सर, जब सर आए श्रुति जी, तो मैंने बोला कि सर गुलाब, दवा, जहर, जाम, ख्वाब, क्या क्या है. निखिल सर आ गए हैं, बताओ इंतजाम क्या क्या है. निखिल सर कह रहे हैं बाउंसर. मेरे सर के ऊपर से गया. यार मेरे को लगा, मैं यार ये मेरा शायद मजाक उड़ाने आए आज सर. पक्का आज ये मैं आज शिवम शर्मा, अब एक शायरी कर दी ना, अब दूसरी मत कर रही हो. Difficult one to understand. No, you're expecting a reaction from Nikhil sir when you're saying इतना शुद्ध हिंदी. You are only down there. How, Shivam, how it will happen? Sir, that was our first meeting, no? So I didn't know. मैं कहा चलो धीरे धीरे जानते जा. उस दिन मैं जान गया था आपको. सर मैं जान गया था आपको सर. उस दिन मैं जान गया था आपको. उसी समय. You have done the same thing with all the people that you've met for the first time, at least on Splitsvilla. All the girls first. I'm not saying I'm a girl, but all the girls. Shero Shari in the beginning, and I'm a kind of person, sir. I believe in first impression is the last impression. तो मैं पहली चाप ऐसी छोड़ देता हूँ कि भाई. So why was your first impression with Nikita so bad? अटक गया ये. सही टाइम पे अटका है. सही टाइम पे अटक गया. हाँ. क्या मैं फिर से अटक गया. हेलो. जनता जानना चाहती है शिवम भाई. Are you answering the question, Shivam? सर देखो मैं बताता हूँ. First impression with Nikita so bad? सर मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से. जब हम लोग आए थे, इस बार क्वारंटीन के चक्कर में थोड़ी सी चीजें खराब हो गई थी, नहीं तो सब कुछ सही जाता. बट अब ये जाके इन्होंने बात भी उससे करनी शुरू कर दी, ध्रुव वगैरह व्योमेश के साथ, लड़कों के साथ. तो मैंने कहा यार इधर से इसने मुझे, व्योमेश ने हमें क्वारंटीन में बोला बता कि यार मैं तो रिया से लड़ूंगा. मैं कहा यार ये क्या स्कैम हो रहा है, बाहर तो उसने तेरे को सिलेक्ट करके भेजा है और तू अंदर आके मुझे बोल रहा है क्वारंटीन में कि भाई लड़ूंगा उससे. तो मैंने कहा भाई ये मैं इसी लड़की को पटाऊंगा, रिया जो भी होगी. मेरे को पता नहीं था कौन है. मैं सच बताऊं, मैंने रिया का मुझे ये भी नहीं देखा था कि भाई इसको आया. मुझे बाद में पता चला कि भाई इसने सिलेक्ट किया था भाई उमेश को, उसने मुझे बताया. तो मैंने कहा भाई आजा कोई बात. फिर मैं कहा अब तो रिया को पटाऊंगा. अब मैं जब मुझे रिया मिली तो वो बातें इतनी कर रही है, वो मैं कहा यार ये लड़की बोलती भी बहुत है, मेरी तरह ही बोलती रहेगी, हम तो फुटेज किसी को खाने नहीं देंगे. बाद में पता चला भाई वो तो स्क्रू ढीला है. तो मेरे साथ हो गया स्कैम. तो मुझे ऐसे नहीं बोलते. You also asked her for running shoes. नहीं मतलब ऐसे नॉर्मल की बात. रिया इतनी भी बुरी नहीं है शिवम भाई. रिया इतनी भी बुरी नहीं. मैंने बुरी नहीं है, मैं बुरी की बात मैंने बोला, ये थोड़ी बोला है यार. मैं आपको अपनी बता रहा हूँ. मेरा आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ ना. अब वो आपकी वो है क्या कहते हैं, जो अभी आप सोचोगे. मेरे हिसाब से मेरा पार्टनर चूज करना मुझे गलती हुई, तो मैं वो तो उसमें वो भी बोलती रहती, मैं भी बोलता रहता हूँ. इसमें गलती वही है, हम दोनों के साथ ही गलती हुई है शो पे. और कौन सा कपल है. और मैं एक बात बोलूं. I wanted to ask this question. There was a lot of sort of backwards and forwards between Riya and you. शुरू में she was upset with you, then you were upset with her. आपने उसको चेन दिया, फिर उसने चेन उतार के वापस आपको दे दिया. Why was there so much confusion between the two of you? Because जैसे कि आपने कहा ना कि आप दोनों का लगता था कि वो vibe match हो रहा था उस टाइम पे. But despite the vibe matching, you were still sort of not on the same page at the same time. सर मैं आपको वैसे बात बताऊं, वो जा चुकी है, शो से खत्म हो चुका है. मैं लिटरली बताऊं, इस टॉपिक पे बात करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वही पुरानी चीजें. अब क्या है, हम जो बात करेंगे ना वही पुराने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे जो हम लोगों ने 2 महीने पहले करे हैं.
ये सेम मुझे ऐसा लग रहा है लाइव रिपीट हो रहा है, तो वही Yeah, but- वही चीज बोलूंगा मैं, वही जवाब दूंगा। वो I वापस भी wanna आ say सकती है, something. वो वापस भी आ सकती है, वो अभी कंपटीशन में है, शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर्स इन वाइल्ड विला। अगर वापस आ गई तो सर मेरा अब तो आई एम विद पलक नो इन द शो। तो क्या वो पलक को तो- छोड़ दोगे फिर से रिया के साथ जाओगे, उसमें क्या? I wanna say something. यस शिवम इतना sad मत हो. You know people are liking you and whatever has happened to you is also because of whatever happened with Riya. वही तो If you gave a lot of as far content. as ideal matches go, more than Rhea, I think Shivam and Kevin have been an ideal match on Splitsvilla. Because I agree. ये नहीं बोला आपने सर, दिस इज द राइट without a Shivam, there is no Kevin. शिविन। So I think शिविन बन गया, actually, सर। अगर आप दोनों Yeah. लोगों के सामने जाते हैं, तो पक्का आइडियल मैच फॉर लाइफ बन जाते हैं। पॉइंट, आई एग्री। आइडियल मैच, मैं भी थी मेरे सीजन में आइडियल मैच। कुछ नहीं होता। पता नहीं, नहीं है आइडल मैच से बनेंगे बहुत कुछ होता नहीं। है श्रुति, हमारे सीजन में आइडल मैच से बहुत कुछ हुआ है, हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ बहुत है। सब कुछ हमारा उसी से हुआ। सिर्फ पावर मिली मुझे भी, ऐसा नहीं है। तो पावर ही तो चाहिए। वही तो चाहिए इनको, और क्या चाहिए? Because I think playing in a minority is मेरे को लगता so है I difficult feel for like us. every time I talk to anybody who's done splits, I feel like I am so dumb. क्योंकि मैं वहाँ पे गेम के उससे गई नहीं थी ना। मैं अगर वैसे जाती तो शायद powers and all of this would have been like on my mind. मेरे को तो ऐसा I लग think, let me put it this way, Shruti, you got a lot smarter in Splitsvilla then I than was you in were Rhodey. in Rhodey's. I agree. Because I had Yes. experience. Yes, you have no idea the amount of stress your gang and I went through to make sure you didn't get voted out on your birthday. यार किसी भी हाल में don't let her get out on her birthday. It was too much stress. Okay, listen, I'm going to say bye to you. Need to bring Okay, Nikhil. bye. Complete the Bhagwan gang. See you. See you, Bye, Shruti, Shruti. see you. Bye. Okay, so just gonna add Shruti, thank you so much for being here, and I'm gonna just see if I can find Nikhil Malik. He's here. यार जय भाई, हम लोगों ने वाइट क्यों पहना है? वाइट कैसे पहने? निखिल जय भाई। टाइम विद पलक। हाँ, वाइट पहना हम लोगों ने, कि कोइंसिडेंस कैसे हो गया? यार निखिल What's तुझे वाइट up? पहन What is up? What is up? How's it going? How you? क्या हाल है sir? निक? All good. Okay, so all I have good. some standard interview type questions to ask. तो मैं सबसे पहले ये पूछ लेता हूँ कि आप तीनों एक साथ क्यों एक गैंग में जुड़े? What was the spark? What was the motivation? Your vibe And I- attracts and I've your seen tribe, this, by the way. sir. ये रोडीज में होता है, ये स्पिट्सविला में होता है, ये हर रियलिटी शो में होता है कि जब आप कुछ लोगों को एक झुंड में छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली दो ग्रुप्स बन जाते हैं। It always happens. But what is it that made the three of you become one group and the others become one group? इसका जवाब शिवम भाई देंगे। शिवम भाई आप एकदम बढ़िया सर वो जवाब कहते हैं ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। क्या होता है ना, देखो आप सर स्प्लिट्सविला तो ना क्वारंटीन से शुरू हो गया था। जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना रूम्स की, हमारे एलोकेशन जो थी, सबसे लास्ट में मेरा रूम था। फिर आते हैं निखिल भाई, वो स्टोरी बताओ, ध्रुव वाली, फोन वाली, मास्टरमाइंड क्यों बने? सर क्या हुआ, हम लोग जो रात को एक दिन पहले आए ना, तो ध्रुव मुझे और 7 रूम दिए गए थे, ठीक है। तो मेरा रूम था 109, तो मेरे साथ था 108, जो बाद में निखिल भाई का हो गया। अगले दिन मुझे जब पता चला क्या हुआ, अब सुनो, मुझे लगा है ध्रुव 7 वाले रूम में। मैंने इंटरकॉम घुमा दिया, मैं कहा हेलो, मैं कहा ध्रुव ये बात हो रही। तो मैंने सारी सब इस बंदे ने, वो इतना मास्टरमाइंड आदमी कैसे हो सकता ना। आप सुनो, इस बंदे ने ना ध्रुव बन के मुझसे 5 मिनट बात कर ली। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ यार, मैं कहा तो उसका क्या हुआ? कह रहा हाँ, मैं कहा तो क्या हुआ उसका? तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कुछ दाल में काला है। और मैं कह रहा हूँ जाके देखो कि है कौन, जरा कौन है वो, कुछ हुआ है मेरे साथ। वही बात हुई, मैं जब गया हूँ रूम के खोला, मैं कहा अंदर से भाई लॉक किया, तो बंदा चश्मा वशा पहन के एकदम, जैसे होता नहीं कंप्यूटर हैकर टाइप बंदा होता है, जो
अगर हैकर ऐसा लगा मेरे को, तो एकदम मास्टरमाइंड बंदा होता है जो एकदम जैसे फुल चश्मा वश्मा लगा के एकदम, पर ऐसे आया बात, मगर भाई ये बहुत स्मार्ट आदमी, इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इसने बहुत, फिर मेरे को उस दिन समझ आ गया, मैं कहा वेरी स्मार्ट। उसके बाद मैं रूम में गया हूँ हम लोग, उसके बाद इनकी रूम के साथ था ध्रुव का रूम, थैंक यू। ध्रुव के साथ था जय भाई का रूम। तो ये जो एलोकेशन जो थी ना रूम्स की, ये बड़ी खतरनाक थी। इस वजह से हमारा जो बॉन्ड था ना बहुत स्ट्रांग होता चला, क्योंकि हम पीछे बैक साइड निखिल भाई और मैं हम लोग बैठ के खाते थे साथ डिनर करते थे, तो हमारा पीछे ना खिड़की की साइड से बॉन्ड स्ट्रांग हो गया खाना खाते खाते। सर जब हम नहीं क्वारंटीन में थे ना, शिवम भाई, तो तुम ये लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम तेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे पास आपकी क्यों आवाज आए नहीं और कैसे आ रही है अभी आवाज? वो बताऊं बता वो दूं? बताना चाहिए तुम्हें, वही तो बताना चाहिए। That is the main thing. I think that was the only अच्छा, reason why वो you बता came दो to ना। me, and that's how we three of us came together. हाँ, तो क्या हुआ फिर एक दिन जब सलमान जैदी गया घर गया, उसके बाद तो मेरे को व्योमेश आके अगले दिन बोलता है कि पर मैं ऐसे वो देख भी रहा होगा लाइव, तो कोई बड़ा मना वाली बात नहीं है भाई, मैं सिर्फ बात की बात बता रहा हूँ। आगे बोलता है भाई शिवम, तो वो ना तेरे को पता चला वो चला गया, ठीक है ना, अब देख तेरी फुटेज ज्यादा हो रही है, तेरा ज्यादा शूट हो रहा है सीन, तेरी इंट्रो अच्छी शूट हो रही है, तो ना तू क्या करियो, अब देख अपना, हाँ देख तू विलन बनने की कगार पे, तेरा अब तेरे को देखना, तू हमारे साथ रहेगा। मैंने कहा भाई ये बंदा आके मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गया है, मैंने कहा मतलब, तो मेरे ना दो तीन मेरा दिमाग घुमा, मैंने कहा यार ये तो ये क्या करेंगे, ये तो ध्रुव ये मेरे साथ है। मैं कहा सबसे पहले क्या होगा, ये उधर जो नए लड़के आए उन्होंने गैरी और उसको बात करनी शुरू कर दी थी, वर्कआउट साथ करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा शिवम पंडित जी ये तो गेम हो रही है खराब। मैं कहा ये अब आप ना सबसे पहला बंदा आप ही हो गए निकलने वाले जय भाई के बाद, क्योंकि मुझे बोलता कि सबसे पहले निकालना जय दुदाने को सब वोटिंग, क्योंकि उन्होंने वो ये कर दी थी, क्योंकि रोडिस का कुछ करेज था इनका पुराना, जो पुराना शॉर्ट ऑडिशन के टाइम में कुछ हुआ होगा रोडिस के टाइम पे, तो बोलता है कि सबसे पहले जय को निकालना है। मैंने कहा उसके बाद जय के बाद If you see my audition ना with व्योमेश, मैंने जो लास्ट अभी सीजन था उसमें मेरा और व्योमेश का एक सेमीफाइनल का चैलेंज होता था, ऑनलाइन ऑडिशन which I was a part of it. Okay. Yeah, so in that challenge I had defeated व्योमेश. हाँ जी। Yeah. तो उसके बाद मैंने कहा भाई इसके जय भाई के बाहर निकलती निखिल भाई का नंबर, जो कि तब मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, मैं उनकी लिस्ट में प्रायोरिटी में इतना अच्छा दोस्त नहीं था, क्योंकि फ्लाइट में ध्रुव और ये लोग ज्यादा अच्छे बॉन्ड बन गए थे इन लोगों का, ट्रेवॉर केविन की साइड पे स्टार्टिंग में कोई सर हमारा ये ग्रुप बनने का उसी मेन दिन रीजन क्या ये हुआ था कि कि जिस दिन हम एक सेकंड जैसे ही मुझे ये बात बोल के गया ना, रुक जाना, निखिल को बोलने दे अभी, चुप। तो सर जब ये लास्ट डे आ गया था ना क्वारंटीन का, तो जब हम तीनों बैठे और हमने बात करी, तो ऐसा पता चला कि ऑलरेडी प्लानिंग शुरू हो गई है, क्योंकि वो लोग थोड़े ज्यादा इकट्ठे हो रहे थे, तो प्लानिंग शुरू हो गई थी कि पहले इसको निकालेंगे फिर उसको निकालेंगे। तो हम तीनों पता नहीं क्यों टारगेट थे, शो शुरू नहीं हुआ है, किसी को कॉन्सेप्ट भी नहीं पता इस बार क्या होने वाला है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि यार ये टारगेट है, ये बेकार है। जय को बोला गया कि अरे इसकी बॉडी है, बड़ा स्टिफ होगा, सबसे पहले इसको निकाल खत्म करेंगे हरा के, फिर मेरा नंबर लगा देंगे क्योंकि मेरी बॉडी नहीं है, इसलिए मेरे को निकाल देंगे। फिर कहते हैं शिवम तो कार्टून है, शिवम को रख लेंगे, ये वो जोक मारता रहेगा, मजा बना रहेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो हम तीनों ने जब बैठ के बात शेयर करी ना, तो हमें माइंडसेट समझ आया सबका, और अपना भी माइंडसेट समझ आया। तो फिर हमने कहा कि नहीं यार, किसी की भेड़ चाल में नहीं चलना, किसी के पीछे नहीं भागना, चाहे कोई भी हो, केविन हो, सलमान हो, व्योमेश हो, लोग इनको जानते हैं, लोगों को पता है कि ये लोग बाहर से आए हैं, बट फिर भी हम लोग अपनी गेम खेलेंगे, जितना हो पाया इज्जत से खेलेंगे और इज्जत से बाहर निकलेंगे, जितना कर पाए करेंगे। तो जब हमने बैठ के तीनों ने डिस्कशन करी ना, उस टाइम एक अलग ही पता नहीं क्यों एंथुसियाज्म आ गया था हम सबके अंदर, तीनों के अंदर, और हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे गेम के लिए। और फिर अगले दिन तो वो पहला दिन जो शूट का था, उस दिन तो मजा ही आ गया था, तो क्या ही बोले। वहां से हम तीनों का बूम बाम, ये शिवम नाम कैसे कभी भी अरे इसने बोला मेरे को ना कुछ ऐसा बनाना है जो ये छाप छोड़ के जाए सीजन में, जैसे लास्ट टाइम आशीष भाटिया का था बूम ब्रो, तो इस बार इसको था मुझे कुछ ऐसा करना है काइंड ऑफ। अरे एक ना तो एक से एक गेम आया वहां से, एक पबजी गेम है, प्लेयर अंडरग्राउंड बैटल ग्राउंड एक गेम है, उस पे ना जब क्लैन में फाइट करते हैं ना,
पबजी का बूम बम, तो हम कोई भी स्क्वाड वाइप करते थे ना, तो हम बोलते बूम बम, ये मतलब गेमर्स की वो है, स्लैंग है। तो एक समझ लो गेमर स्लैंग समझ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तभी हम लोगों ने शो में कभी ये नहीं डिसाइड किया था कि बूम बम नाम का एक ग्रुप होगा। वो तो जब हमने भी शो किया था ना रोडीज का, हमने ये डिसाइड नहीं किया था, हमने एक्चुअली डिसाइड नहीं किया था कि हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा लॉयल्टी इज रॉयल्टी। It just kind of ये तो फैंस ने बनाया, which is what makes it nicer. ये automatically बन जाता है ऐसे, and it kind of then takes on a life of its own, which is really nice. I also want to say this to everybody who comes to reality shows. अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है reality shows के साथ कि बहुत लोग इसको स्टडी करके आते हैं कि शोज में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ग्रुप्स ऐसे बनते हैं, ऐसे चैलेंज होते हैं, इंटरनल वोट आउट हो जाएगा, डबल वोट आउट हो जाएगा, ट्रिपल वोट आउट। तो जब आप ज्यादा सीख के आते हो ना, आप गेम को ठीक से खेल नहीं पाते हो। एंड दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स इज हैपनिंग ऑन वाइल्ड विला, बिकॉज इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी कंटेस्टेंट को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, कि अगला चैलेंज क्या होना है, अगला ट्विस्ट कौन सा आने वाला है, which makes everything more fresh and more real. And I think that when people come over prepared for any show, whether it's Roadies, Big Boss, Splitsvilla, whatever it is, you end up playing a caricature instead of being yourself. You end up pretending to be somebody else, which never works. To be honest, जब हम लोग तीनों बैठ के बात करते थे ना ड्यूरिंग द शो, और चाहे मैं गोल्ड विला में होता था या जय आइडियल मैच बनने के बाद गोल्ड विला में बैठा, हम लोग तब भी पता नहीं क्यों कभी ना कभी वरिड ही रहते थे। हमें पता है कि हमारे लोग सेफ हैं आज, हम तब भी वरिड रहते थे कि कोई ना ऐसे ट्विस्ट आ जाए, कोई ना ऐसे टर्न आ जाए। And I think because इसकी एक वजह है, आप वरिड क्यों होते हो? Sorry Jay, I'll just bring in this point. You are worried because आप कितने contestant हो कुल मिला के? 6 मतलब टोटल में, इन टोटल हमारी टीम में 23 people. Actually yes, there are 24. The 24th contestant is the game. Yeah. और जो आप कह रहे हो, that is the most dangerous contestant. कि ट्विस्ट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा? That is the most, and it's good to be worried about that because it keeps everybody on their toes. और तभी मजा आता है, एक्साइटमेंट बनी रहती है। And to be very honest, हमने कभी ये नहीं डिसाइड किया कि हमें आगे क्या करना है। We used to be just like कि आज का दिन कैसे, हम डोम डिसाइड नहीं करते थे सर, हम डोम भी डिसाइड नहीं करते, मानोगे? That was the only strategy what we always had. हम ये सोचते थे आज का दिन टप जाए, आज का डोम टप जाए, अगली बार देखेंगे। कोई गोल नहीं है कि इतना आगे जाना है, उतना आगे जाना है, बस आज का दिन निकलवाओ भगवान। अरे हम तो सिल्वर कनेक्शन चैलेंज, हम सिल्वर कनेक्शन चैलेंज के दिन पे भी ये नहीं सोचते थे कि हमें कल डोम जो होने वाला है उसमें क्या करना है। We used to be like कि नहीं आज का दिन कैसा निकालने का है हमें से, वो निकालो। एक एक दिन करते करते मैं गोल्डन विला पहुंच गया आइडल मैच बन के। Yeah, but guys, जो लोग शो को देखते हैं उनको पता नहीं कि इस प्रोसेस में कितना स्ट्रेस होता है आप लोगों को। Very stressful. Supremely stressful, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई आउटलेट भी नहीं है। You don't have the option of picking up the phone and calling someone. Exactly. Can talk to your girlfriend or your parent. So a lot of people crazy ask stress. me, a lot of people ask me, you know, कि how was the experience, और तुम्हें तो बहुत मजा आता रहेगा शो के अंदर शूटिंग के टाइम। मैंने बोला बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। मैंने मेरे जिंदगी के सबसे स्ट्रेसफुल दिन जो मैंने देखे वो मेरे स्प्लिट्सविला के अंदर देखे, बिकॉज एवरी सिंगल डे देयर आर फाइट्स गोइंग ऑन, एवरी सिंगल डे, you know, you are planning, plotting, then you have to maintain that relationship with you know, the opposite gang as well as your partner, as you with your friends. So it's so stressful, plus खाना भी टाइम पे नहीं होता था बिकॉज you know, शूट हमारा लंबे टाइम तक चलता था, रात को 2 सेशंस होते थे। So I think this was something very like very interesting. It is. I think this is one of the kind experience. Very stressful. But it's once in a lifetime experience, to be honest. हर बार नहीं जीने को मिलता भाई। मैं तो बहुत खुश हूँ, नहीं किया, मेरे को बड़ा मजा है। 20 साल बाद आप देख लो कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या किया। आप यहाँ पे गए घूमने, छुट्टियां वहां पे मनाई है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए किया आपने, व्हाइट वाटर राफ्टिंग किया, जो कुछ भी किया ना, एंड यू लुक बैक एट इट एंड यू रियलाइज दैट दीज शोज, रोडीज एंड स्प्लिट्सविला, वर सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू डन इन योर लाइफ। व्हेन यू आर डूइंग देम, they are horrible, very stressful, very stressful. But when the memories that you get from it,
those last a lifetime. Now when we see the episode, तब दिखता है हमें कि भाई हम क्या करके आए हैं, चाहे वो स्ट्रेस में किया है, चाहे वो एनर्जी में किया है, बट एपिसोड की बात छेड़ ही दी है निखिल। हाँ जी तो सर। मैंने भी एपिसोड में देखा कि एक बहुत अच्छा डेट था आपका। इनफैक्ट आई वॉच्ड द एपिसोड लास्ट नाइट क्योंकि मैंने कहा यार आई हैडंट वॉच, आई नॉर्मली वॉच द एपिसोड ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है, आई वॉच टुडेज एपिसोड टुनाइट। और ऐसे यार ये एपिसोड मैंने देखा नहीं है, and when I was watching it, I saw कि Shivam has left the room out of embarrassment. Tell us about. Maybe sir, battery. Sir, it was a fun date. ठीक है, भूमिका थोड़ा ज्यादा लो फील कर रही थी बिकॉज उसको सबसे ज्यादा एप्स मिली थी और बहुत नेगेटिव एप्स थी वो। तो जैसे ही हम लोग चैलेंज लोकेशन से निकले थे वो रोने भी लग गई थी, वो विला में रोई भी थी। फिर जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तब भी उसके दिमाग में वही चल रहा था और हमें नहीं पता था कि हमें डेट पे जाना पड़ेगा। तो जब हम डेट पे गए तो पलक भी वहां पे थी, पलक को पता था हम जा रहे हैं एंड सब कुछ नॉर्मली था। नॉर्मल सर मैंने सिर्फ एज अ फ्रेंड उसको कंफर्टेबल फील करवाया कि एज अ फ्रेंड कंफर्टेबल। तो पलक शो पे आपकी फ्रेंड थी। मैंने इतनी बार, आप मानोगे नहीं सर, डेट तो छोटी दिखाई है, मैंने पलक का नाम 50 बार लिया है कि भूमिका बीच में चिढ़ के मेरे को बोली कि तू पलक क्यों करी जा रहा है, तू मेरे साथ डेट पे आया, मेरे साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर। तो मैं कहा कि चल हाँ ठीक है। तो मेरा एक सवाल है, जो कुछ भी मैंने शो पे देखा ना, शायद शिवम और जय आपने भी शो पे देखा होगा। सो आई वाज़न्ट देयर, नीदर वर दे देयर। व्हाट इट लुक लाइक to me, it looked like there were two people in a jacuzzi. दोनों रिग्रेट कर रहे थे कि वो इससे पहले नहीं मिले जब वो कोट अनकोट सिंगल थे। नहीं, it looked like they were filled with regret. Bhumika was filled with regret and you were filled with regret कि यार जब वो डांस का परफॉर्मेंस हुआ था ना, by the way I was there in the audience watching the dance performance. It was brilliant. मैं आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ था and I was like chilling and having a cup of chai and watching all of you guys perform. Jay in his ultra tight pants and everything else. But after that dance performance and this jacuzzi, the two of you look like yaar, gosh. So I can understand Palak being upset. I can understand Palak being very upset because. But my point was कि मैं आया हूँ, एक बार मेरी बात सुन ले, जस्ट टॉक। चाहे तू गुस्सा भी कर, एक बार सुन और बात कर, नथिंग एल्स। तू गुस्सा हो, जो करना है कर, मेरे को चिल्ला और बात कर। वो भाग रही है इधर उधर, वो बात नहीं कर रही, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू बोल रही थी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एटलीस्ट बात कर ले मेरे से, नथिंग एल्स। और भूमिका के साथ मेरे को कोई रिग्रेट नहीं था। मैंने अगर रिग्रेट होता तो शायद मैं ये नहीं बोलता कि मेरा कनेक्शन है। बहुत लोगों ने कनेक्शन चेंज करे अपने। मुझे ऐसा अगर रिग्रेट होता कि मेरा तो आइडियल मैच भी नहीं है ना पलक, तो मैं कनेक्शन चेंज कर देता, क्या पता यहाँ पे मौका मिल जाता मेरे को। बट मैं तो खुद ही अपना पत्ता काट के आया कि भाई नहीं यार, मेरा कनेक्शन तो पलक ही है। बोल दिया तो अभी बोल दिया, अभी वो मेरी चीज है, अभी क्या कर सकता हूँ। It'll be interesting कि आगे क्या होता है। Let's see. Guys, obviously, before I forget, I should say this to you in the beginning. Please don't give away what happens further down the show, because of course some of us know कि आगे क्या होने वाला है, but audience के लिए they only know what they've seen so far. Yeah, exactly. So, is there still some friction game के हिसाब से in the game between Palak and Bhumika right now? I'm not talking about outside. I'm not talking about. Yeah, there is. At this point in time, because Palak went and threw all Bhumika's dresses on the bed and then wrote that note. It's kind of a cold war which is going on right now because she's not talking. अभी बात नहीं हो रही है और मुझे ये चीज थोड़ी अजीब लगती है जब कोई सामने से आके एटलीस्ट बात नहीं करता। तो एटलीस्ट बात करके क्लियर हो जाती वो चीज। अभी जब वो एपिसोड देख चुकी होगी शायद उसको रियलाइज होगा कि मैंने डायरेक्टली यही बोला कि हाँ हालांकि मेरा कनेक्शन है। सो यार, बट अभी शो के हिसाब से तो अभी कोल्ड वॉर चलने वाली है। But there's also some friction, Jay, between Avantika and Nikita as well. Avantika and Nikita.
I've actually got the wrong guests on the show. I should have got all of you guys out and got the girls instead because all the action scenes have happened. No, but yeah, I feel उनके बीच में भी problem तो of course sir होगा ही because Samarthya and Nikita have a like they have a like crazy bond and उसके बीच में भी Samarthya keeps getting a rash on his neck. Yeah, he has a lot of rashes on his mosquito bites. Right, then he has bandages put. Like even we were shocked to see the bandages. We were like, oh, what the like ये क्या है भाई? Good. And उसके बाद में फिर the mosquitoes are so big in Kerala. No, but I feel so bad for Avantika. I feel bad for Avantika though, because she had nobody to perform at that time. You know, I half feel bad for Avantika and I half don't. क्योंकि Sunny भी उसको बता रही थी कि Avantika, you have to think for yourself. क्योंकि at the end of the day ना कि I don't know what the equation is between the three of you guys, but at the end of the day, everybody wants to win. You don't mind if your friend wins, but you would rather win yourself. Yeah. You know what I mean? क्योंकि आप सब competitive हो यार. जब रन और मैं frisbee खेलते हैं, we're best friends, but fuck, he wants to beat me and I want to beat him. Right. So it's a very competitive thing that you don't mind if somebody else wins, but if it's a choice, आप जीता चाहते हो. And Sunny was trying to say this to Avantika कि यार आपको बुरा नहीं लगना चाहिए. अगर आपको किसी के साथ खेलना है और आपको आगे बढ़ना है, आपको गेम जीतना है, तो आप खेलो. अगर दोस्तों को बुरा लगता है तो बुरा लगता है यार. अब क्या कर सकते हो? गेम का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है ना. Yeah. If you can't look after your friends' emotions at that point in time, then you have to. Yeah, because I feel when she was in the Golden Villa with Nikhil, she could have played smartly, you know, rather than just again going against us and supporting them, one-sided वो पूरा खेल रही थी. So it was, वो हमारे भी दिल में ये था कि इसको कभी वहां से बाहर निकाले. तो I feel like वहां पे वो थोड़ा मिस्टेक उसने किया. And मगर आप भी जानते कि जब she was only thinking about जिस दिन आपके साथ कुछ अच्छा होता है ना स्प्लिट्स विला में, आपको लगता है कि आप तो किंग ऑफ द हिल हो, कि आपके साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं. सही कह रहे हो. Forget about thinking about tomorrow. और हमारी तो सारी रातें खाली हुई है सर. From that, क्या खाली हुई है? सारी रातें खाली हुई है हमारी रातें खाली हुई है. आपकी सारी रातें खाली. सच में सर, मतलब when you're always the underdog and you're getting pushed around, you know what it's like. But if you're always in a safe position, the day you come out of your safe position, it's scary. जो अभी क्या होगा पता नहीं. And every single moment in the dome, I think every single minute, every single second, there is some other twist. Ran sir used to come up with something or ऐसा कुछ तो लेके आते थे जिसमें वो सामने वाले का जो प्लानिंग था वो भी चेंज करवाते थे वहां पे डोम में. दोनों गोल्ड विला जाके कुछ अलग ही इम्प्लीमेंट करते थे. Exactly. ये दोनों गोल्ड विला पहुंचने में मेरा यहाँ पे खाता नहीं खुल रहा है. मैं कह रहा हूँ सर, ये दोनों गोल्ड विला पहुंच गए, मेरा यहाँ पे खाता नहीं खुला. मैं यहाँ पे सेफ डंपिंग जोन से बाहर नहीं जा रहा हूँ. तो बैठे वहाँ पे एक आइडियल मैच बन गया. मैं समझ गया गेम चल क्या रही है. कोई बात नहीं सर, मुझे पूरा भरोसा था. मैंने कहा ये जब तक ये अपने में से हम लोग, हमारा एक ही चीज होती थी, हमने में से एक बंदा वहां पे होना चाहिए. दो पहुंच गए तो फिर अब्बा जब्बा डब्बा इनका सामने वालों का बूम बाम. यही होता हम लोग. जैसे अभी शिवम ने बोला कि वी जस्ट मेड श्योर कि हमारा एक बंदा तो गोल्ड विला में चाहिए हमें, बिकॉज वी हैड पावर. उसके पास एक पावर है तो एक कोई तो परफॉर्म करेगा. अगर एक सेफ अनसेफ जोन में भी है तो उसको बचा लेगा वो. But then I think luckily, thank God, by God's grace, we had two people in the Golden Villa, so we had to save only one guy. That is Shivam. Lord aims fire, boom bam. The thing is, on a reality show, being in numbers or more numbers can be both an advantage and a disadvantage. So you just have to see how it plays out. Shivam, I feel it's more of a disadvantage. Yeah, not always. Yeah, not always. क्योंकि कभी-कभी जब straight vote होता है ना, सर मैं बताता हूँ, more people on your side, the better. हमारी टीम में सर बहुत कम बारी straight vote होता है. Sorry शिवम. सर हम लोग भले ही 3 लोग थे, 3 की यारी सब पे भारी इसलिए हुई क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, चाहे 3 लोग हैं, बट हम अकेला बंदा भी 3 पे भारी है. तो हम लोग 3 लोग भी बहुत भारी है. अभी तो समझ नहीं आया, स्टार्टिंग में ना समझ नहीं आया.
तो ये हर, जैसे निखिल भाई के अंदर दिमाग है, तो उस फील्ड में वो किसी को भी क्रैक करते हुए ले जाते हैं। वो हमारे टीम में क्या है, बेस्ट जैसे होता है ना, भोलेनाथ की 3 आंखें होती हैं, बेलपत्ते 3 होते हैं, तो मेरा 3 नंबर से बहुत ज्यादा लगाव है। तो जब हम 3 हुए ना, तो मेरे को लगा भाई यार अब तो ये मास्टरमाइंड इसलिए बोलेगा क्योंकि गेम का पासा पलटना इनको आता था। जय भाई टास्क में और दिमाग, और जय भाई का तो कॉम्बिनेशन, इसको दिमाग लगाएगा, अपन अपनी गेम खेलते हैं, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। जो अभी तक हमारे ग्रुप में कोई भी डिसीजन लिया था ना, ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ले लिया गया, जय भाई ने बोल दिया तो ले लिया गया, नहीं। एक तीनों जैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का अंगूठा लगेगा नहीं जब तक, और तब तक वो लॉ पास नहीं होता। तो हम तीनों की स्टैंप लगती थी, ओके 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 अप्रूव, चलो भाई अब ये करना हमने, ऐसे होता था हमारे ग्रुप में। क्या होता था, ओके गाइस, nobody fuck my mind, okay, I'm saying this, you do it, okay, ये चलता था इनके ग्रुप में। एक मिनट, if Nikhil is the brain and Jay is the muscle, who are you, Shivam? I'm the entertainer, so entertainer, sir, entertainer. I'm the entertainer. No, but sir, मुझे गेम से मतलब ये, अपने वो सिर्फ अपने को जनता को हंसाना है सर। मैं वहां पे शो जीतने गया थे, भले गया था, बट अब मेरा मेन एम होता है जनता का दिल जीतना, जनता को हंसाना। वो जो मुझे यार गेम हार जीत लगी रहती है सर जिंदगी में। अब हर बंदा तो फर्स्ट आएगा नहीं, हर बंदा तो 13 जितने 7-8 कपल थे, हर बंदा तो जीतेगा नहीं। इट्स नॉट अबाउट सर, मंजिल का मजा नहीं है, सफर का मजा है मेरे लिए। मैं ऐसा इंसान हूं, मुझे सफर, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन सर, इट्स अ जर्नी दैट मैटर्स। तो अपनी जर्नी शानदार रही है ना यार, तो बस हर हर महादेव है, वही चीज है। आप मेरा नाम सुनते लोग वहां पे मुंह पे चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, बस मेरी ये जीत है। मेरे को शो से मैं जीता, हाँ वो ठीक है, मिला है होता है, बट सबका दिल जीतने का है। देखो अब निखिल भाई हंसे ना, ये सब हंसे ना, ये अपने को ये चीज है। नहीं, but sir, I still remember this one thing, you know, एक दिन ये शिवम भाई बहुत ही अपसेट थे, you know, I think कोई तो एक चैलेंज हार गए थे, तो मैंने इनको सिर्फ इतना ही बोला था कि यू नो शिवम भाई, आपका जो मेन फोकस है ना वो एंटरटेनमेंट है, बराबर। आप अगर झगड़ने को लगते हो तो आप 5 या 10 लोग को भी शांत कर सकते हो अकेले आपके मुंह से, तो आप उस पर फोकस करो। जब भी लड़ाई होगी आप सबसे पहले होगे तो सबको शांत करोगे, बराबर। आप बाकी का टेंशन मत लो, अगर किसी ने हाथ उठाया तो हम लोग हैं उसको पटकने के लिए। जय भाई को फील करो। I'm not even kidding. I'll tell you one thing, Jay. I am so glad that I'm not a contestant because, like Kevin, Shivam has a quality. He gets under your skin. Yeah. It is not that he's the strongest or the smartest, but he has a quality. ना ये कुछ इसके पता नहीं, ये जो बोलता है और जैसे बोलता है. And Kevin has the same quality as well. That you want to keep, इसको मैं दिखाऊंगा आज. Everybody feels that way. And that's also what I think the audiences are kind of seeing in you, which is why audiences are polarized. Nobody says कि हाँ शिवम ठीक है. They either love him or they don't love him. Sir, आज same thing. They either love him or they don't love him. सर मैं बड़ा ग्लैड एक चीज बोलना चाहूंगा। एक सो जब भी निखिल यूज्ड टू सिट इन द गोल्डन विला, मैं और शिवम भाई हमारे डंपिंग जोन में खड़े रहते थे इनिशियली। तो आपने डोम सेशन अभी तक देखा होगा ना, जब शिवम बात करना लगता है तो शांति नहीं होता है। तो मैं क्या करता था, शिवम भाई मेरे को शिवम भाई इतना बोलते थे कि जय भाई मेरे को ना सिर्फ टॉपिक बताया करो किस पे बात करना है। आई एम नॉट इवन किडिंग, बोले जा रहे हो यार, बस करो यार। There have been times that I've been sitting outside the dome, watching the dome. You guys have started fighting. I have left, I've gone to my room. I've come back. You're still fighting. I'm going to tell you something very interesting. So ये मेरे को बोलते थे, gone to sleep. They're like, wake us up. ये मेरे को बोलते थे कि जय भाई मेरे को ना आपसे मुद्दे बताओ, आप टॉपिक बताओ। Sir, I'm not even kidding. I swear on my mom, I used to write the topics on my hand. मैं हाथ में लिख के आता था और है ना मैं एक टॉपिक बताता, शिवम भाई अभी है ना इसको ये टॉपिक पे बोलना है, तो शिवम भाई 15 मिनट उनको वो टॉपिक पे बोलते थे। फिर मेरे पास देखते थे ऐसा राइट में, जय भाई नेक्स्ट टॉपिक बताओ, नेक्स्ट टॉपिक बताओ, तो उनको मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ही यूज्ड टू फाइट ऑन दैट टॉपिक। ऐसे नहीं, ये ना अब ये ऐसे मैं कहा जय भाई ये हो गया, अब क्या करना है? शिवम तुम अभी ना तो
देखो, अब बोलो बोलो अब बोलो। हाँ क्या तू चालू अब बोलो सर Okay, ऐसे so we have ये साथ में होता है ना ऐसे अरे अभी नहीं ऐसे ऐसे बात चल रही है स्कूल नहीं रहे हम तो चल रही है उधर से प्रतीक सर कह रहे हैं सब सुनाई दे रहे हैं मेरे को सब सुनाई आ रही है इधर आ रही है भाई मेरे को For those who don't know, Pratik is of course the coordinator of all the contestant manager, right? Yeah. So guys, one of the things that we seem to be missing out on over here is, of course, we can see that there's great camaraderie between the three of you. But forgive me for saying this, Splitsvilla is not a pissing competition amongst guys. It's about relationships and connections, right? Yes, sir. Yes, sir. And somewhere in this rivalry and this teen ki yari, and I see that sometimes कि जब आप बोलते हो ना कि जब आप एक couple जब एक task जीतता है, amongst you also, you still say teen ki yari सब पे भारी. You've kind of forgotten that there's a partner who's been just as effective in helping you win that task as you have been. Mm-hmm. So, is there a positive dynamic between you and the girls that you have a connection with, or is it just about you three boys? No sir, दोस्ती सर हमारे में तो it's not. हम जब 3 लोग मिले थे तो अब 3 की दोस्ती बन गई थी, तो कुछ ऐसा स्लोगन बनाया नहीं था या कुछ ऐसा नहीं था. नहीं, उस लोगों के बाद में बने थे वो सब. हाँ, मैं कह रहा हूँ जब कनेक्शंस बन गए थे अपने अपने, या एग्जैक्टली जब कनेक्शंस बन गए थे अपने अपने, और अभी एक होता ना एक लाइन होती है, तो अभी पहले 3 लड़के थे तो वो 3 की यारी थी, अभी 3 कपल हो गए तो वो 3 की यारी हो गई, तो 3 कपल की यारी सब पे भारी, बट हम ऐसे बोल नहीं सकते थे, तो वही था 3 की यारी सब पे भारी, मतलब ऐसे थी. And this तो वो था 3 कपल की यारी सब पे भारी. आई थिंक ये 3 की यारी सब पे भारी भी निकाला था. आई थिंक पलक ने बोला था फर्स्ट टाइम 3 की यारी सब पे भारी. मैंने बोला नहीं, निखिल भाई ने बोला मैंने बोला पलक ने बोला था डोम में जब तेरे को बचाया था. हाँ Oh, that incident was like the craziest incident. लेकिन जय भाई का स्लोगन है तो मैं ना हमेशा एक गाना गाता था, किस्मत की हवा कभी हम सब तीनों अलग अलग है. मेरा बुम्बा में 3 की यारी सब पे भारी, पता नहीं कौन जा रहा था तो बेटा जी मैं कहा ओके नाइस है. बड़ा मजा आया. मुझे गैरी ने एक दिन पूछा कि जय भाई आप ये गाना क्यों गाते हो हमेशा. मैं बोला देखना डोम में कभी किस्मत की हवा कभी तुम्हारे साइड होती है कभी हमारे साइड में होती है, मतलब ये गाना एकदम परफेक्ट है ये सिचुएशन के लिए. तो देन ही यूज्ड टू बी लाइक ओह गॉड ये बराबर है, ये सही पकड़े हो आप. Okay, so I've got one question to ask all three of you. It's the same question. Yes, sir. What is it that you find most special about your connection? Jay, आपसे शुरू करते हैं. What do you find most special about Aditi? So it is something like, sir, she's first of all she's very cute, very sweet, and very loyal. So जैसे कि मैंने शो के डे 1 पे मैंने बोला था कि I'll stick to one girl. So I think ये सेम उसके साइड से भी आया है और दिखा शो में अभी तक कि she will always stick to me, even if I lose, even if I win, whatever. And we I think हमारे जो thought process थी ना वो काफी मैच करती थी, बिकॉज जो चीजें मैं बोलता था एंड ऐसा नहीं था कि अगर कोई गलत डिसीजन मैंने लिया तो शी विल कीप ब्लेमिंग मी फॉर समथिंग, एंड सिमिलरली इट वाज द अदर वे अराउंड. सो दिस थिंग आई यूज्ड टू लाइक अबाउट हर, एंड या उसकी स्माइल सर बहुत क्यूट है, तो उसमें सब कुछ वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट इट, व्हाट आई वुड. Yeah. That's very sweet. Nikhil, what do you like about, who are we talking about firstly? Palak or पता मैंने अभी तक अपना जवाब रेडी नहीं किया इस चक्कर में कि ये किसका जवाब दे रहा है. मानोगे सर मैं सोच रहा हूँ मैं पलक का नाम लूंगा, मैं ये पहले में देखता हूँ निखिल क्या बोलेगा, पलक का नाम लेगा तो मैं कुछ और बोलूंगा. अभी तक मैंने सोचना शुरू भी नहीं किया. चलो अब मैं वैसे पलक का ही बोलने वाला था, पर मैं आपको सुनना चाहता हूँ पहले. अरे आप किसके बारे में बोलोगे ये तो बता दो, मैं किसके बारे में बोलूं.
पलक के बारे में, पलक ऑब्वियसली पलक के बारे में कोई पूछने वाली बात है कोई? So मैं what do you कि find आप? most special about Palak? अबे मैं सर एक सेकंड, मैं किसके बारे में बोलूं? मैं किसके बारे में बोलूं? मेरा कनेक्शन कौन है ये बता दो। रिया, अबे रुक जा, रिया, आ रहा हूँ। मेरा कनेक्शन कौन है? तेरे पे लास्ट आ रहा हूँ। आई एम कमिंग लास्ट यू for that only Yes. because we Okay. don't know about you. तो रुक जा पहले निखिल तू बोल। तो बात सर जब मैं तक बोलूं? हम डे 1 जब डेट पे नहीं गए थे तब तक क्या बोला ये? पता नहीं उसका थोड़ा नेट एकदम भागा ये। हाँ, सो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड द वे शी केयर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, एंड हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी रही है थ्रू आउट अभी तक जितनी भी रही है। ये एक डेट के बाद थोड़ी सी हिल गई थी, बट ये सब होता रहता है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अगर ये ना हो तो फिर सब कुछ अगर हैप्पी चल रहा है तो वो फिर एक परफेक्ट चीज नहीं होती मेरे हिसाब से। सो हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, वी वर वोकल अबाउट थिंग्स एंड थोड़े से पॉजिटिव और अच्छी केयर, तो ये सब अच्छा था। तो मेरे को इसलिए आइडियल मैच ना बनने के बाद भी स्विच करने का मन नहीं किया, बिकॉज मैं खुश था जहां मैं था। ओके एंड नाउ किसके बारे में? शिवम जी मेरा कनेक्शन कौन है? आप ही बताओ। I mean, you've already spoken about Riya, how Riya and you hit it off Yes. because you both Yes. talk Riya, about it. she was a nice girl, she was sweet girl, Vibe अच्छी well लड़की थी, together. but मेरे हिसाब से ओके But तो आगे हम when बढ़ते हैं। Riya left, when Riya Yes, sir. left Splitsvilla and went to Wild Villa, I don't know how much you missed her. Did you miss her a lot? एट दैट टाइम तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आई वाज मिसिंग लोग हर, अटक फिर गए। बाद में जैसे जैसे गेम बढ़ती चली गई, मैं गेम पे जरा ज्यादा फोकस नहीं था। मेरा देखा भाई चलो ठीक है, जो होता है चला जा रहा है, मूव विद द फ्लो, बस वही चल रहा था मेरा। बाकी भूमिका वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट, तो अभी निखिल भाई के साथ। We were just waiting for you. Everybody just kind of went. Did Shivam talk about a girl? I missed that. नहीं सर, वो आपका वेट कर रहा था, वो रुक गया था। हाँ ठीक है शिवम। अब मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, शिवम को दिखाऊं। Who do you find special? His शायरी। हेलो, अरे चल रहा है, मेरा नेट चल रहा है। मैं कुछ सुन। हाँ अभी चल रहा है। अभी आवाज आ रही है तेरी। वीडियो तो अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक, मैं दोबारा आता हूँ, एंटर करता हूँ दोबारा। ओहो, ये सही टाइम पे भागा ही, देख रहे हो आप सर? एग्जैक्टली। एस्केप टैक्टिक। सही बात है, ये एकदम से नेट कैसे खराब हो गया इसका? मैं अभी आता हूँ। बजा रहा है। अरे मेरे फोन की बैटरी कम थी ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा स्लो हो गया था। अच्छा। ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि पलक, हाँ पलक पे आ जाते हैं। पलक रिया पे थे हम, पलक पे कहाँ से थे? रिया पे तो छोड़ा है, रिया को तो। सवाल रिया का था ना सर। अरे क्या क्या क्वेश्चन था, क्या पूछा सर आपने? छोड़ा आपने? क्वेश्चन ये था कि आप who is it that you find a special connection with and what is it that you like most about them? स्पेशल कनेक्शन था मेरा किसी से नहीं बना, बस मेरे दोस्ती का कनेक्शन बना है। पलक जो है, तो पलक, अदिति और लेके आए थे। चेन, वो सर वो पिछले जमाने का 100 साल पुरानी वाली बात। बहुत पहले। वो 2 को दे दिया, अभी तीसरी को नहीं दूंगा। यार तुम्हारा मेरे को ना, मेरा क्या सर, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा भाई डोम सेशन है पहला, मैं शिव शर्मा जी कोई कसर नहीं छोड़नी है, किसी पे कैमरा नहीं जाने देना। मैंने कहा भाई शिवम कुछ, मैं कहा चलो मंगलसूत्र बना दो, ना जानना पहचान कौन है, बना दो भाई, देखी जाएगी बाद में। मैंने कहा चलो धोखा हो गया, हमें कोई बात नहीं, गाली पड़ेगी, चल क्या होगा। शिवम को जेन्युइन नहीं लगा था, 3 एपिसोड में पूरा शो दिखा दूंगा लोगों को। मैंने सर सब कुछ कर दिया तो एपिसोड में ही, मुझे को बाद में समझ आया, मैं इतना नहीं करना यहाँ पे, तो बहुत भाई मुझ पे बारी पड़ जाएगी। मैं कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे करते हैं। फिर मैंने कहा चलो अब बात नहीं, फिर बाद में अब क्या सही बात है, तो दे भी दिया है तो अब निक्की से बात कैसे करूं।
मैंने कहा भाई छोड़, कोई बात नहीं, एक दिन गाली पड़ेगी ना, कोई बात नहीं, आगे दूर की कुछ नजदीकी एडिट से ज्यादा अच्छा है दूर का नुकसान सोचना। तो डायलॉग माइंड है मेरे संजय दत्त बाबू वाला, बाबा वाला। मैंने कहा ओके, वही फॉलो करते हैं। मैं जाके बात करी निक्की से, निक्की मेरे को पसंद तो थी पहले दिन से। तो उसके बाद मेरे को लोगों ने बोला था कि भाई ये अलग टीम की है, वाइब नहीं है। मेरे को पता तो था थोड़ी चालाक सी भी है, जो कि इसकी था ना एक सोबो टाइप। मेरे को वाइब तो मैं बात से कैच करके आया था स्टोरी वगैरह देख के इसकी। निकिता मैं कहा चालाक अजीब सी है? story। चालाक नहीं मतलब सोबो है ना सर, बॉम्बे गर्ल्स सोबोस, दे आर वेरी चालाक सी है। ये तुमने बोल बिली दिया आइलिश चालाक टाइप है। दिखते हैं ना। तुमने चालाक बोल नहीं दिया मतलब बिली आइलिश होते नहीं, मतलब विटी, लाइक एक जनरेशन अहेड है। जो नई जनरेशन है ये इट्स लाइक जो जनरेशन गैप होना चाहिए ज्यादा है। जनरेशन तो मैंने कहा ओके उनका कोई बात वाईफाई नहीं, मैं थोड़ा उससे तेज बात चलता है, करता हूँ। मतलब उनका पसंद तो मुझे वाईफाई थी। थोड़ा तेज चलता है ना। हाँ उसका वाईफाई तेज है, हाँ, ठीक है। उसका वाईफाई तेज है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे पसंद तो थी स्टार्टिंग से ही। तो मैंने कहा जाके चल बात करता हूँ। फिर बाद में उसने भाई बाद में जैसे ही सर एक सीन देखो मेरे साथ क्या हुआ क्या, मैं यहाँ पे शायरी सुना के हटा हूँ, प्यार मोहब्बत की रानी बनाए हैं, वहां पे जाके उसने मेरे कवर खोद दिए। कैमरा लेके भाई बंदा बना बना गाली दे रही है, अलग अलग गाली पड़ रही है मुझे। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ क्या क्या। अब मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ शर्मा जी, Hey, but tell me something. स्पिरिचुअला, मेरा स्पिरिचुअला तो यहाँ चालू हो रखा। What was that nose thing that happened, man? वो सर समझ नहीं डॉक्टर, मैंने माँ की कसम, मैंने डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बोला, कैमरे फुटेज चेक कर लो सर, मैंने डॉक्टर शॉप यूज ही नहीं किया। वो केविन ने एक्टिंग उसने बढ़ा चढ़ा के दिखाया था। बट शिवम का एक मतलब डायलॉग हुआ होता क्या है था? सर, शिवम का एक डायलॉग प्लीज, ये इम्पोर्टेंट है। जैसी कौन सा नाक वाला? लगी ना, अंदर गया, बाहर आता है नाक पकड़ के, अब मैं डोम में कैसे जाऊंगा, मैं कैसे लगूंगा। उसके बाद में निखिल ने को याद Not वाला enough तो makeup in the world to cover up the broken nose. और सर मजाक नहीं कर रहा। और नहीं और समझा शिवम भाई, मैंने एक चैलेंज था ना तुम्हारा पेंटर पंछी का, जिसमें भूमिका ने तुम्हारे पैर पे पैर रख दिया था, तो इसको लग गया था, चिल्लाने लग गया डॉक्टर डॉक्टर। उसके बाद और बोलता है, सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वो ना मेरे को लगी थी मैं अरे वो तुम्हें पता नहीं आज सर मेरा जब लड़की ने मैं जब विला आ रहा था ना सर, तो उससे ना एक हफ्ता पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे पैर पे चोट लगी हुई थी, तो वो रिकवर नहीं हो रही थी। क्वारंटीन तक खत्म हो गया, मेरा पैर पे वो चोट रिकवर नहीं हो रही थी। और मैं अभी भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी जो उसकी एनाटॉमी है ना थोड़ी सी बिगड़ चुकी है। मैं अभी मैं वापस सनी मैम को दिखा रहा हूँ मगर यस मैंने दिल से बोला था मैम, मेरा क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा यहाँ पे मेरा पैकेट बन रहा है। मैं कंफ्यूज, मैं यार जब मैंने एपिसोड ओ भाई साहब ये करने आए थे मेरे साथ, धीरे जाकर मैं चलो जिसका दिल साफ होता है सर उसकी मेरी अच्छी होगी। स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गालियां खाई है भाई मैंने, बहुत गालियां खाई है। मैं कौन लाइव आता नहीं था सर, मैं स्टार्टिंग में मैं कहा भाई एक दिन बहुत गाली पड़ रही है, तुम बताओ अभी फायदा नहीं। शिवम सर कुछ पूछ रहे थे शिवम से, सर आप कुछ Yes, sir. कुछ बोल रहे थे आप। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि उस सिचुएशन में हुआ क्या था, क्योंकि आपके नाक में लगी तो नहीं थी ना? सर लगी थी बट इतनी तेज नहीं लगी थी। पर मैं कोई कैसा थोड़ी छोड़ूंगा कैमरा सर, मेरे को कैमरे से बहुत प्यार है। लाइट्स कैमरा शिवम, मेरे को कैमरा मेरे को बस कमरे बंद कर दो, मेरे सब कैमरे दो और मैं आऊंगा। मैं और कैमरे दो चीजें होंगी। कोई चीज मैं जब तीसरे दिन तक तो मेरे को सर पहले 2 दिन तो मैं बहुत मतलब रोया भी हूँ। एक बार तो मैं रोया, मैं कहा शिट यार ये तो बड़े कमीने लोग हैं, बड़े कुत्ते। मैं कहा यार ये तो साला एयरपोर्ट में फ्लाइट से शुरू हो गए थे सर मास्टरमाइंड। जब मेरे को जब इंसान रात को सोता है ना तो उसके माइंड में पूरी चीजें पूरे दिन की स्टोरी चल रही होती है कि भाई क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं हुआ, आपको समझ ही होगा। फिर वहां पे तो अलग ही दिमाग चलाना पड़ रहा है और साथ में जैद उतारना है, सो रहा हो तो आपको फिर नींद ही कैसे है। बंदा भाई सर ये बंदा वो मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक बार रुको। ये बैठ बंदे का दिमाग देखो आएगा फोकस। अच्छा तो ये हुआ वो हुआ ना, हाँ अच्छा ओके। पिल्लो लिया, चादर ली और एकदम जुक अपनी सर। मैं कह रहा हूँ भाई ये बंदा छू के भी देखा मैंने 2 बजे रात को। मैं कहा भाई जिंदा है भाई, बंदा 1 घंटा है मतलब कुछ अपनी सोच में चला जाता है ये बंदा। मैं कहा ये सोच में एस्ट्रल ट्रैक हो गया भाई का। मतलब दिमाग लगाने वाला हमारे ग्रुप में मतलब स्टार्टिंग की जो प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है ना वो उनका इन दोनों का ज्यादा रोल है उन चीजों में।
Yeah, but I think Jay, if you can go to sleep that. अरे एस्ट्रल ट्रैवल सर, मैं कह रहा हूँ आपको, लूसिड ड्रीम हो रहे थे भाई के, भाई अलग ही। It shows that you're very